Welcome to the class of Indian Partnership Act 1932, and today we are going to discuss section 9 and 11 of Indian Partnership. As you can see, section 9 and 11 में हम क्या जानेंगे बच्चे, that what's the relation of the partners is there. Partners आपस में कैसा relation share करते हैं, what is that relationship among them, okay, and how that relationship is built, we will also see that. Basically बच्चे, relationship is based on the two fundamentals, right? Two fundamental principles हमें बताते हैं कि हमें कैसा रिलेशन आपस में पार्टनर्स में रखना है, and these two fundamental principles also govern the relation of the partners. How the partners are related to one another, that we can see through two principles that are mentioned in your section 9 and section 11. As you can see, section 9 says the principle of utmost good faith. Utmost, or you can say almost, okay, utmost good faith, that is your section 9. So section 9 में आप जानेंगे कि पार्टनर्स जो हैं, हम जब सेक्शन 9 अभी आगे रीड करेंगे, यू विल सी हाउ दैट रिलेशनशिप ऑफ गुड फेथ इज बिल्ड अमंग द पार्टनर्स, हाउ दैट कॉन्फिडेंस इज गेन्ड अमंग द पार्टनर्स. एंड सेक्शन 11 को पढ़कर भी आपको ये पता लगेगा कि रिलेशन पार्टनर्स में कैसा होता है, एंड दैट प्रिंसिपल इज voluntary agreements. Right bache? You can also prepare your notes side by side. Very important topic is going on right now. So section 9 and section 11 are having the two important principles that shows us what's the relation of the partners are with one another. So first now we will see section 9 in detail. Okay, section 9 आपकी बात करता है absolute good faith की. I have written utmost good faith, that's the same thing, that's absolute good faith. So you can see after section 9 that partners carry on business of the firm, है ना. फर्म का बिजनेस कैरी करके चलते हैं बच्चे. जो भी फर्म का बिजनेस होता है फॉर द प्रॉफिट मोटिव, वट एवर द ट्रांजेक्शंस, डेली ट्रांजेक्शंस जो होती हैं, वो सब पार्टनर्स को कैरी करनी पड़ती है. एज पार्टनर्स हैव टू वर्क, पार्टनर्स हैव टू मैनेज दैट फर्म, right? So that business is carried on by the partners of the firm to the greatest absolute advantage. They have to carry that business to the absolute advantage, and that advantage must be greatest, and that advantage must be shared by all. So we will write here greatest common advantage. Okay, so this advantage जो बिजनेस कैरी किया जाता है विद द मोटिव कि जो भी हम अर्न करेंगे, जो भी हम कमाएंगे, दैट विल बी shared by all partners, and that must give common advantage to each and every partner they have. ओके, फर्म में जितने भी पार्टनर्स होंगे, इधर जो फर्म का बिजनेस है वो सारे पार्टनर्स मिलकर कैरी कर रहे हो या फिर सिंगल पर्सन कैरी कर रहा हो, लेकिन मोटिव क्या होना चाहिए उस फर्म के बिजनेस को कैरी करने का. इट्स नॉट मस्ट बी द सोल मोटिव ओनली. सिर्फ अपना अपना प्रॉफिट नहीं देखना है. यू हैव टू सी दैट दैट प्रॉफिट मस्ट बी enjoyed by all the partners, and that advantage is also shared by every partner. So it must be the common advantage. जब आप एक common advantage लेकर चलते हो, सबका हित लेकर चलोगे, वो एक पार्टनरशिप का रियल बेसिस होता है. सो सेक्शन 9 से आपको रिलेशन समझ में आया कि कैसा पार्टनर्स के बीच में रिलेशन है. मीन्स वो एक यूनिटी में काम करते हैं, एक टुगेदरनेस में काम करते हैं. And then partners need to be dashed and dash to each other. What section 9 says, that they have to be just. Just means they have to be fair with each other. Just and faithful. वट एवर द ट्रांजेक्शन्स आर, उनके किसी पार्टनर के पीछे से कोई ट्रांजेक्शन हुई है, उसकी एब्सेंस में आपने कोई डीलिंग की है, यू हैव टू मेक हिम क्लियर व्हाट हैड हैपेंड बिहाइंड हिम. सो यू हैव टू बी
जस्ट एंड फेथफुल फिर विद ईच एंड एवरी पार्टनर। आपके बीच में कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीटिंग या फ्रॉड एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जहां पर भी कोई भी बात ऐसी आ जाती है जिससे आपका ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो जाए बच्चे, वहां पर पार्टनरशिप भी एग्जिस्ट नहीं करती। पार्टनरशिप का आपको एंड दिखता है, बिकॉज पार्टनरशिप जो बेस्ड होती है वो इन्हीं प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है, जस्टनेस, faithfulness, fairness, how much trustworthy you are with each other. So you have to show complete confidence on each other. Then partners have to render true accounts, कि आपको जैसा भी प्रॉफिट हुआ है, कोई भी लॉस हुआ है, कहीं से आपको एकदम से एक्सेस एडवांटेज मिल गई है, वो आपको एक दूसरे को क्लियरली बताना है। आप कोई भी बात किसी पार्टनर से छिपा नहीं सकते। इफ इट वुड बी देयर तो वहां पर बच्चे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाएंगी, चीटिंग का एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा, एंड दैट इज नॉट द गुड साइन फॉर द पार्टनरशिप, राइट। देन नेक्स्ट व्हाट सेक्शन 9 एल्स सेज, ये सब बातें आपको सेक्शन 9 की कितनी अच्छे से बताई गई हैं कि एक गुड फेथ पे, एक एडवांटेज पे जब आप पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं, दैट टेल्स अस द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशन दैट पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप शेयर। सो नेक्स्ट इज दैट पार्टनर्स हैव टू गिव full information, okay, information about each business transaction, each accounting transaction, each profit you have made, so that information you have to give. So partners have to give full information of all the things that is dash the firm to any partner or is दैट इज अफेक्टिंग बच्चे, ओके। सो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन या ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन, ऐसी कोई भी बात जो बिजनेस में आपको पता लगी है और अदर पार्टनर्स को भी नहीं पता है, तो ये ड्यूटी उस पार्टनर को बनती है जिसको ये बात पता चली है कि वो सारे पार्टनर्स को इन्फॉर्म करे कि ये बात हमें कल अफेक्ट कर सकती है, हमारी पार्टनरशिप को अफेक्ट कर सकती है, एंड द फर्म टू एनी पार्टनर और हिज, अगर पार्टनर तक आप वो इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए हो तो आपको वो इंफॉर्मेशन जाकर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जरूर देनी है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अगर आपने वो इंफॉर्मेशन दे दी तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपने उसी पार्टनर तक वो बात पहुंचा दी है, कि ड्यू टू सम रीजंस आप वो बात पार्टनर के पास नहीं ले जा पाए या पार्टनर को कन्वे नहीं कर पाए कोई मैसेज, एंड यू हैव रेफर दैट इंफॉर्मेशन टू हिज और हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, देन ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि आपने अपने बिहाफ पर अपनी सारी ड्यूटीज को कंप्लीट कर दिया है। ओके बच्चे, नाउ दिस इज योर सेक्शन 9। वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड सेक्शन 11। सेक्शन 11 भी हमें एक बात बताता है, क्या, दैट नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हमारा सेक्शन 11 कहता है, दैट इज आई सेड यू वॉलेंट्री एग्रीमेंट्स, कि कुछ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे देखिए पार्टनरशिप क्रिएट होती है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट में आप कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हो वो हमें सेक्शन 11 से पता चलती है। आप अपने बीच की आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जिस पर आप सब सहमत होते हो वो बातें आप अपने कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में लिखते हो, दैट आर कॉल्ड वॉलेंट्री एग्रीमेंट्स, मीन्स दैट एग्रीमेंट दैट आर प्रिपेयर्ड बाय your wish according to your ways. So section 11 says that mutual rights and duties of the partner of the firm are determined by contract or agreement. So I'll write here contract. So mutual rights and the duties of the partners जो होती हैं, जो भी सारी चीजें जिन जिन एलिमेंट्स पर वो एग्री करे हैं वो सब आपको कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिलती है बिटवीन द पार्टनर्स। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चे, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। आई टोल्ड यू एग्रीमेंट पार्टनरशिप का जो होता है डबल एस, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। आप इम्प्लाइडली भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर सकते हैं, एक्सप्रेसली भी फॉर्म कर सकते हैं। दैट इज नॉट मैंडेटरी कि हमेशा कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप का एक्सप्रेस्ड फॉर्म में हो, इम्प्लाइडली भी हो सकता है, बस ये होना चाहिए कि सारे पार्टनर्स को इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। अब मैंने आपको बोला है कि सेक्शन 11 में ये है कि आप किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन को एक कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हो। तो जब पार्टनरशिप क्रिएट होती है बच्चे, इसमें एक सबसे बड़ी चीज जो आपको देखने को मिलती है दैट इज सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले मैं आपको समझा देती हूँ क्या होता है। इसका मतलब ये होता है दैट इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट टू ट्रेड, मीन्स ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी भी पर्सन को ट्रेड करने से रोकता है, वो एग्रीमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या बोला गया है, उस एग्रीमेंट को वॉइड।
ठीक है, उस एग्रीमेंट को वॉइड करार दिया गया। मीन्स दैट एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट अगर कोई भी पर्सन किसी के साथ बनाएगा, मीन्स ऐसे करके कि तुम ये ट्रेड नहीं कर सकते, या कोई बैरियर लगा दे, कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा दे, रिस्ट्रेंट क्रिएट करे, तो वो एग्रीमेंट कानून की नज़र में वॉइड है। उस एग्रीमेंट का कोई लॉजिक नहीं है, वो एग्रीमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, और वो पर्सन बाउंड ही नहीं होगा एग्रीमेंट्स की टर्म एंड कंडीशंस फॉलो करने के लिए। ठीक है, एवरीवन हैज द राइट, इट इज आवर फंडामेंटल राइट इवन ऑल्सो टू कैरी ऑन द ट्रेड। तो आप ट्रेड के बेसिस पर किसी के ऊपर रोक टोक नहीं लगा सकते, है ना। बट अगेन दिस सेक्शन 27 जो है, इसको सेक्शन 11 ऑफ दिस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर एक एक्सेप्शन के तौर पर इंक्लूड किया गया। हाउ? इस सेक्शन 27 में इस बात को बोला गया कि हम एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड को इंक्लूड कर रहे हैं, बट ओनली विद द पार्टनर। सिर्फ पार्टनर के केस में क्या बोलता है ये, विच सेज दैट पार्टनर शैल, क्या कहेगा ये एलिमेंट, या जब आप इस टर्म को, इसको अपने एग्रीमेंट में इस कंडीशन को लिखोगे तो ये कंडीशन क्या कहती है, दैट विच सेज दैट पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन द बिजनेस कैसा, अदर देन दैट ऑफ द फर्म वाइल ही इज पार्टनर। मीन्स जितने टाइम पीरियड तक, जितने टर्म तक आप किसी पार्टनरशिप के अंदर एज अ पार्टनर की तरह रहते हो, पार्टनर की तरह आपका टाइम पीरियड चल रहा है, तो तब तक आप जाकर सेम बिजनेस को कहीं और पर स्टार्ट नहीं कर सकते। यस, एंड दैट इज राइट, ये बिल्कुल राइट कंडीशन है। बिकॉज इससे क्या होता है बच्चे, जो वो पार्टनर होगा वो फुली ट्रस्ट से और एक फुल फेथ से काम नहीं कर पाएगा। जो वो काम अपना पर्सनल होकर करेगा, फिर वो आपके फर्म में उतना डेडिकेशन से, उतनी मेहनत से काम नहीं करेगा। एंड दैट्स वाई ये टर्म पहले ही इंक्लूड की जाती है। और अगर ये टर्म इंक्लूड की जाएगी तो इसको पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, वैलिड। ये बिल्कुल वैलिड है, ये वॉइड नहीं मानी जाएगी। बट ये कब तक, जब तक ये रेस्ट्रिक्शंस जो है सिर्फ पार्टनर के ऊपर अलाउड है। ठीक है, एज अ पार्टनर। अगर वो पार्टनर नहीं रहता है, कल सपोज कीजिए उसने पार्टनरशिप में अपने आप को रिटायर कर लिया या वो निकल गया है, कल वो ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तब उस पर कोई रोक नहीं है, वो बिजनेस वो स्टार्ट कर सकता है। ओके, नाउ दिस सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच आई रिसेंटली डिस्कस्ड विद यू, दिस एग्रीमेंट इज वॉइड। ये वॉइड होता है, मैंने आपको बताया, बिल्कुल टोटली वॉइड होता है अगर आप इसको नॉर्मली बिजनेस में अगर करोगे तो किसी के साथ। बट सच एन एग्रीमेंट इफ एंटर्ड बिटवीन द पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट ये होगा तो ये क्या होगा बच्चे, वैलिड, एब्सोल्युटली वैलिड होगा ये। ओके, सो दिस एग्रीमेंट विल बी एब्सोल्युटली वैलिड। समझ में आया बच्चे? सो सेक्शन 9 एंड सेक्शन 11 क्लोज आपको बेसिकली बताते हैं कि पार्टनर्स जो है वो आपस में कैसा रिलेशन शेयर करते हैं। और इसको समझ के आपको आया होगा, यस, पार्टनर्स जो होते हैं उसमें कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट का होना कितना जरूरी है, वॉलेंट्री एग्रीमेंट्स का होना कितना जरूरी है, वो अपनी कंडीशंस को रख सकते हैं। और कुछ ऐसी कंडीशन जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइड है बट इसमें इंक्लूड हो सकती है, दैट इज योर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो याद रखना है बच्चे, एमसीक्यू में वो क्वेश्चन आया है। जो बच्चे जुडिशरी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि सेक्शन 11 में 27 को एक्सेप्शन की तरह यूज किया गया है। सो विद दिस योर सेशन इज ओवर। सेक्शन 9 एंड 11 आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। इन नेक्स्ट सेशन we will start section 12 of Indian Partnership Act. Till then, keep reading, keep revising. Have a good day. Thank you.